Assalamu alaikum everybody. I hope that you're all fine. So the topic of today's discussion is concentration tips. So basically today's topic is controlling your concentration. So in this lecture we're going to study that how we can concentrate on our goal and a main topic. So here it is, somebody sitting in the chair and asking that I'm finding it difficult to concentrate but I'm not sure why. So इंसान को पता ही नहीं होता कि मुझे क्यों मुश्किलात आ रही हैं और कैसे मैंने इनको कोप अप करना है. So let's see how we can manage it. So what is concentration? Basically पहले होती क्या है concentration? That is what we are going to discuss today. So to concentrate is to direct your mental power or your efforts towards a particular activity, subject or problem. So तवज्जो होती क्या है? एक आपका मेंटल प्रोसेस है, एक आपने फोकस की हुई एक चीज़ को और सारी एफर्ट्स आपने उस ख़ास सरगर्मी की तरफ लगानी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है और प्रॉब्लम है उसी पे फोकस करना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग दैट हैपन्स अराउंड इट. तो आपका फोकस मेन वहाँ होना चाहिए. The next is what is memory? Obviously both the things are interlinked, so that's why I include this slide about memory that will help you to understand concentration actually. So what is memory? Memory is the ability to remember information, experiences and people. तो बेसिकली हम उर्दू में कहते हैं याददाश्त या याद दहानी क्या होती है. हम किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, किसी तजर्बे को या लोगों को जब आप याद रखते हैं तो दैट मीन्स कि वो चीज़ें आपकी मेमोरी में जा रही हैं. तो याद दहानी और याददाश्त यही होती है कि चीज़ों को रिकॉल करें जो आपकी मेमोरी में होती हैं. So here on this slide we are going to discuss the relation between concentration and memory. So इन दोनों का ताल्लुक क्या होता है आपस में. We have discussed already that what is concentration and what is memory. So now we are going to discuss about the relation between these two things. Concentration and memory work hand in hand. We generally practice only skills that improve our memory but never look at factors that enhance concentration. Good concentration will enhance memory. That is the best line that I have included in that slide, third one. बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि कंसंट्रेशन मेमोरी जो है वो एक साथ साथ चलते हैं. तो जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं स्किल्स को अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे फैक्टर्स को ओवरलुक करके अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए. सो आपकी अच्छी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी मेमोरी को भी बेहतर कर देती है. तो इनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अहम है और दोनों चीज़ें साथ साथ ही आगे चलती हैं. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. So what is the introduction of these two terms? The art or practice of concentration is to eliminate distraction and focus on the task at hand. So do you find that you read through material and suddenly discover that you have no idea about what you have just read? Or if you attend lectures and have difficulty paying attention to what is being said? तो इसमें तारुफ कराएगा कि होता क्या है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन आपको प्रैक्टिस कराती है बेसिकली जो डिस्ट्रैक्शन है इर्द गिर्द, वो इर्द गिर्द जो मतलब मामूली चीज़ें जिनके ऊपर फोकस नहीं रखना है आपने, उनको एलिमिनेट करके एक मेन पॉइंट पे फोकस रखना है. तो नेक्स्ट वो हमें बताते हैं कि ऐसा मटेरियल डिस्कवर करना होता है जब आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार अब समझ नहीं आ रही मैंने पढ़ा ही क्या है अभी. सो दैट मीन्स
you didn't have the focus on the topic, तभी आपको पता नहीं होता. Then next is to attend the lecture and have difficulty paying attention to what is being said. और आपको पता नहीं होता क्या कहा जा रहा है. That means you are not focused, you are not paying concentration on the topic. So your focus is here and there. That is why you are feeling trouble. You're facing trouble actually. Next is, does your mind flip from one thing to another? Do you have trouble focusing on something for more than a few minutes? These are two questions that we will discuss in discussion class, and I'm throwing these questions to you people to answer these questions. क्या कभी आपकी तवज्जो जो है एक चीज़ से दूसरी तरफ चली जाती है, या फिर आपको ट्रबल होती है एक ही चीज़ को लॉन्ग टाइम पर, you're longing for something for quite a while. Do you feel any difficulty when you're focused on something for more than few minutes? These are the questions that you have to answer that. Next is, how if you went to the gym and tried to lift weights only to find that your arms and legs are weak and heavy, then what do you do? आप जिम जाते हैं और वज़न उठाने की कोशिश करते हैं और आपके आर्म्स एंड लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतने to lift that weight. So then what do you do? Next is, you would start exercises to strengthen your muscles, right? ओके, तो ऑब्वियसली आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके मसल्स का मजबूत बनाए और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएं, टू स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दैट वेट दैट यू couldn't able to lift in the first attempt. So that is the point that where I want all of you to come on that point. Similarly, your mind is a kind of muscles too. तो वो कहते हैं आपका माइंड भी इसी तरह का एक मसल्स है. सो दैट मीन्स आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके माइंड को बेहतर करे और आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ. Just like the muscles in your body, your brain too needs exercises to tone up its strength of focus and concentration. Yes, that's what I've discussed a little while ago, that जैसे बॉडी के मसल्स होते हैं ऐसे ही ब्रेन्स के मसल्स होते हैं. जैसे आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं टू बिल्ड अप एंड टू स्ट्रॉन्ग योर मसल्स, ऐसी एक्सरसाइजेज आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं जो टोन अप करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, फोकस को, कंसंट्रेशन को, आपकी मेमोरी बेहतर बनाते हैं, कंसंट्रेशन बेहतर बनाते हैं. सो ऑब्वियसली whatever way your body works, your mind works the same way, so you have to deal with that accordingly. Next, determining your concentration span. डिटरमाइनिंग यूर कॉन्सेंट्रेशन स्पैन के देखते हैं कि कितने लंबे अरसे तक आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं. गो टू अ स्टडी एरिया एंड गेट सेटल्ड. रीड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक belonging to your least favorite subject. Note the time you start. Make an effort to learn and recall the information you read. Note the time at which you find your mind beginning to wander. No matter how little, this will be your maximum concentration span. सिंपल वे में मैं ये स्लाइड्स बनाता हूँ और सिंपल लाइंस लिखता हूँ, एक लेमैन भी पढ़े और वो समझ जाए इसको. दैट वाई सो आई do not need to elaborate or express a little more, I guess, because these lines are too simple to understand. कि आपने एक स्टडी एरिया में जाके खुद को सेटल करना है और एक बड़े सेक्शन में टेक्स्ट बुक बिलोंग टू योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट को लेना जो आपके लिए फेवरेट नहीं है, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ वेयर यू हैव टू एग्जामिन योर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कि आप कर पाते हैं या नहीं. नोट द टाइम यू स्टार्ट. आप जब अपनी
रीडिंग स्टार्ट करें तो अपना टाइम नोट करें कि कब आपने शुरू किया. मेक एन एफर्ट टू लर्न एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन यू रीड. ऐसी कोशिशें करें चीज़ें, एफर्ट्स और सीखने की, और उनको दोबारा रिकॉल करें इंफॉर्मेशन को जब आप पढ़ रहे हो. नोट द टाइम एट विच यू फाइंड योर माइंड बिगिनिंग टू वॉन्डर, नो मैटर हाउ लिटिल. तो आप चेक करें आपका माइंड जो है कब वो फोकस मतलब है एंड देयर करता है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो. ऑब्वियसली चीज़ें आपको मैक्सिमाइज करेंगी, अपने कंसंट्रेशन को मैक्सिमाइज करेंगी, और आपका जो कंसंट्रेशन का स्पैन होता है, जो बेसिकली आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ तो आपका वो ड्यूरेशन होता है कंसंट्रेशन का, उससे बढ़ाएगी फर्दर. Next, you will observe that your concentration span varies depending on the subject, how you feel, your mood, the amount of rest that you have taken, as well as your eating habits. अब ऑब्जर्व करेंगे ये आपकी कंसंट्रेशन जो है, आपकी तवज्जो का जो ड्यूरेशन है, उसका टाइम है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा. क्यों? कि वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, वेदर इट इज़ योर फेवरेट वन और नॉट. ऑब्वियसली आपका फेवरेट होगा तो वो कंसंट्रेशन का स्पैन भी बढ़ेगा. अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि आप के लिए फेवरेट नहीं है, ऑब्वियसली फिर आपका कंसंट्रेशन स्पैन भी दैट विल लेस इन टाइम, और फिर आप किसी और वे में महसूस करेंगे, आपका मूड जो है वो भी स्विंग करेगा. अमाउंट ऑफ रेस्ट यू हैव टू हैव टेकन एज वेल एज योर ईटिंग हैबिट्स, आपको जो आराम किया आपने या फिर कुछ खाया है, जो आपके खाने पीने की आदत है, ये भी वेरीज करेंगी according to the subject that you have taken. The next is the study beyond your concentration span is ineffective. सबसे बेहतरीन लाइन है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ना और ऐसी चीज़ों के कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाना जो मुयसर ही नहीं है, तो वो किस तरफ आपको लेके जाता है. Next is you may be still reading but your brain will be losing most of the information it takes in. तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा पढ़ते जाएं, आपका मुंह जो है सम टाइम ऐसे होता है कि आप बोलते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो माइंड में नहीं जा रही होती, बिकॉज माइंड जो है इनएक्टिव हो चुका होता है, और आपका जो है वो पढ़ने का वो लेवल स्पीड है वो उसी तरीके से जारी रहती है. सो दैट डजंट वर्क एक्चुअली. तो आपके लिए फोकस माइंड का भी और रीडिंग का भी एट द सेम टाइम होना चाहिए. दैट्स वेयर द information takes in your mind. Next, ways to increase concentration. How you can increase your concentration? What are the ways and what are the areas where you can focus on that will help you to concentrate you in in focus and different things that you have to adopt. Stick to a routine and steady schedule. एक रूटीन बनाएं और स्टडी का शेड्यूल बनाएं. ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ बिगिनिंग मिडल एंड एंड. आप किसी चीज़ को एंड पे जाके नहीं पहले ले सकते, वो एक सीक्वेंस से चलना होता है, तो फिर शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है. स्टडी इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट, हमेशा खामोशी में पढ़े. बेसिकली इनको ट्रांसलेट करने की आगे ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी लाइन्स हैं और वर्ड्स हैं दैट हैव चूजन फॉर यू. आसान है बिल्कुल. फॉर अ स्टडी ब्रेक डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन डूइंग. जब आप स्टडी से कोई थोड़ा वक्फा लें तो ऐसी चीज़ें करें जो आपने पहले नहीं की हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें करें ऐसी, लाइक वॉक अराउंड इफ़ यू हैव बीन सिटिंग एंड इन अ डिफरेंट एरिया. अगर आप काफ़ी लंबे अरसे से बैठे हुए हैं तो फिर आप थोड़ा वॉक करें इधर इर्द गिर्द. Next, avoid daydreaming by asking yourself question about the material as you. So दिन में ख्वाब ना देखें, ऐसी चीज़ों का खुद से ही सवाल ना करें, और ऐसे मटीरियल के बारे that you don't know about it. So दिन में जैसे कहते हैं कि ख्वाब ना देखें. And next, you don't try to mix work and play. वो कहते हैं खेल कूद और पढ़ाई को और काम को मिक्सअप ना करें.
So always differentiate and separate these things accordingly. That is why on the first point that I've said that make a schedule, तो हर चीज़ किस्म का शेड्यूल बनाए, इन चीज़ों को मिक्स ना करें. Next is before lectures, look over the notes of the previous lecture and read the course material pertaining to the lecture so that you can anticipate the main ideas that the teacher will cover. हमेशा ही जब आप लेक्चर में जाएं तो एक नोट्स लें और प्रीवियस लेक्चर्स को रीड आउट करें, मटेरियल को प्रिटेंड करें, लेक्चर को जिसके बारे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसके बारे आप पेशकदमी कर रहे हैं, तो आपके को बेहतर आइडियाज़ आ सकें जो कि टीचर जिस पॉइंट को कवर करवाने वाला है. शो आउटवर्ड्स इंटरेस्ट ड्यूरिंग लेक्चर्स, अटेंटिव एक्सप्रेशन एंड पोस्चर टू सेल्फ मोटिवेट इंटरनल इंटरेस्ट. इर्द गिर्द की चीज़ों पे फोकस करने के बजाय अटेंटिव और एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिव पोस्चर रखें. नेक्स्ट इज रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम away from disruptive classmates and by focusing on the teacher while listening intently and note taking. ऐसी चीज़ के अगेंस्ट रजिस्ट करें, मज़ामत करें जो आपके सामने है, ऐसी चीज़ों से, ऐसे क्लासमेट से दूर रहें जो डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट करते हैं, आपके लिए फोकस वाला पॉइंट नहीं बन पाता है. ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें आप. This slide is also tells us how we can improve our concentration. Intimidating assignments, कैसे assignments को further आगे intimidate करना है. Break the larger assignments into small manageable tasks. लंबी assignments को आप छोटे-छोटे manageable task में convert करें. Tackle the most difficult part first. जो सबसे मुश्किल पार्ट है उसको try to cover it first. Next, reward yourself for progress. तो अगर आप अच्छी progress कर रहे हैं तो खुद को भी reward करें in one way or the other. There are different ways that you can reward yourself and work collaboratively. हमेशा ही मिलजुल के काम करें. That will be an easier way to anticipate your goal. And the next is hunger. भूख भी आपकी concentration को vary करती है. Obviously, eat high protein or fruit snacks. हमेशा ही high protein और fruit snacks और इस किस्म की आप डाइट लें. Drowsiness, obviously जब आपको खुमारी है नींद की तो फिर आप concentration अपनी लूज करते हैं. तो ड्राउजीनेस को कैसे आप कोप अप कर सकते हैं. प्लान स्टडी टाइम एट ऑप्टिमम आवर्स, गेट एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज लाइटली टू एनर्जाइज योरसेल्फ. कहते हर किस्म की शेड्यूलिंग है और स्टडी भी उस प्रॉपर टाइम पे लें और अच्छी खासी नींद लें, एक्सरसाइज करें, अपनी आपको एनर्जाइज करें. डिसलाइक और डिसइंटरेस्ट इन अ क्लास, तो जब आप क्लास पसंद नहीं करते या उसमें दिलचस्पी नहीं लेते तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप, पार्टिसिपेट इन अ क्लास, आस्क क्वेश्चंस. ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपके लिए स्टडी के लिए बेहतर हो और पार्टिसिपेट इन क्लास, अपनी पार्टिसिपेशन क्लास में रेगुलर रखें, ना कि फ्यू एंड फार बिटवीन हो. Always ask question whenever you need help. Doesn't matter how hard it is and how difficult it is to say, so you have to ask question always. The next is improving concentration. Obviously ये वही continuation चल रही है, कैसे आप concentration को improve कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंग्जाइटी अबाउट अ क्लास, परेशानी है क्लास के बारे, तो उसको कैसे कोप अप करना है, कैसे रेम अप करना है, कैसे एक्सक्लूड करना है फ्रॉम योर माइंड. स्पीक टू इंस्ट्रक्टर, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करें, ट्यूटर्स
से बात करें, अदर स्टूडेंट्स उनसे गपशप करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आपके जो मसाइल हैं अबाउट क्लास एंड स्टडीज़ एंड वट। बेसिकली यहाँ एंगजाइटी ऑफ क्लास की बात हो रही है तो अपने इंस्ट्रक्टर से, ट्यूटर से और दूसरे स्टूडेंट से बात करें अपनी एंगजाइटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कैसे अब एंगजाइटी को दूर किया जा सकता है। एग्जामिन इफ़ यू आर स्टडिंग अफेक्टिवली। अब देखेंगे आप अफेक्टिव वे में स्टडी कर भी रही हैं या नहीं, तो अपने आप की जांच पड़ताल और स्क्रूटनाइज करें खुद को। नेक्स्ट, assess whether the anxiety is caused by the class or personal issues। अब आपने खुद को स्क्रूटनाइज करना है, एग्जामिन करना है, स्टूडेंट सिचुएशन को जज करना है, वेदर के जो परेशानी आ रही हैं वो क्लास के बारे में हैं और क्लास की वजह से हैं या फिर अपने ज़ाती इशू के बुनियाद पर ये आपकी एंग्जाइटीज़ आ रही हैं। सी अ कैंपस काउंसलर। जब आपको इस किस्म के मसाइल, एंग्जाइटीज़ और कुछ भी हो तो फिर आप अपने कैंपस काउंसलर के पास जाएं ज़रूर, टू डिस्कस दैट मैटर दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंसंट्रेशन। तो कौन कौन से अवामिल हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जो असरअंदाज होते हैं, असरअंदाज होते हैं आपकी कंसंट्रेशन पे, आपकी तवज्जो पे। Obviously टीवी, स्टीरियो, लाउड नॉइज। टीवी होता है, स्टीरियो होता है और बड़े ऊंची आवाज़ जो है वो भी आपकी फोकस को और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, टू कंफर्टेबल सीटिंग, मतलब अच्छे बेहतर तरीके से सीटिंग करना। फ्रेंड्स, फैमिली, पेट्स, फ्रेंड्स भी, फैमिलीज भी, पेट्स भी, टेलीफोन, म्यूजिक, दीज आर द थिंग्स दैट कैन अफेक्ट योर कंसंट्रेशन। सो the next point is that is very important about these factors that affect your concentration. So now we are going to study how we can control these factors. Leave or rearrange the environment। वो जगह छोड़ दें या फिर environment को rearrange करें। use a library or empty classroom। लाइब्रेरी जाएं या फिर अकेली खाली क्लासरूम्स में बैठ के आप कॉन्सेंट्रेट करें। स्टडी अवे फ्रॉम अदर्स एंड इन साइलेंस। दूसरे लोगों से दूर जाके स्टडी करें या फिर खामोशी में स्टडी करें। Obviously, on the one side, I put some factors that affect your concentration about video, loud noise, comfortable seating, friends, family, pets, telephone, music, and on the other hand, I put some points that helps you to cope with these factors that affect your concentration. Obviously, that will help you a lot. So here is the conclusion about today's topic. These are very simple and easy methods and should be practiced very religiously. It will become a habit in the course of time. This is definitely help you concentrate better. इसलिए बहुत ही आसान मेथड्स हैं जो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं एवरीडे लाइफ में अपनी फोकस को और कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए। द नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली जब आप रिपीट करेंगे चीज़ों को, रेपिटेशन आएगी तो फिर आपकी आदत बदलेंगी और आपकी कंसंट्रेशन भी बेहतर होगी। तो रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है टू मेमोराइज समथिंग और पेइंग अ कंसंट्रेशन ऑन समथिंग। एंड नेक्स्ट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू कंसंट्रेट बेटर। तो पिछले पॉइंट से जो दैट आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स दैट डेफिनेटली aids you to concentrate better. I hope and I'm sure that these things helped you a lot. These are very simple points and that will aid you to pay more concentration on your goal and the focus that have to follow. So thank you very much for your cooperation. You've always been a very good class and hopefully this topic that I have discussed
today will help you to boost your concentration and confidence and memory. And if you have a question and find any difficulty, you may ask me about that, and I'll find myself. If you find yourself in difficult situation, hopefully I'll try my best to help you in every single way. Thank you very much once again.